hydrocarbons. Okay, this is the new chapter which we have to study, and let me something tell you about the meaning of hydrocarbons. Okay, तो ऐसे कोई भी substances which are generally made up of carbon and hydrogen, then they are called as hydrocarbons. So compounds which are made up of hydrogen and carbon. Okay, they are combinedly called as hydrocarbons. Okay, so generally the substances which are made up of hydrogen as well as carbon are called as hydrocarbons. Okay, this is the first meaning you need to understand. Okay, तो हाइड्रोकार्बन्स नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और कार्बन ही मेनली रहेंगे. ओके, अब आता है कि हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या क्लासिफिकेशन होता है. ओके, सो नाउ कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. Okay, so hydrocarbons are generally classified on the basis of covalent bond, on the basis of type of covalent bond. Okay, तो किस बेसिस पे क्लासिफाई होता है? On the basis of type of covalent bond involved in the atom. कौन सा टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, उसके बेसिस पे हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू three categories. They are classified broadly into three categories. The first category is called as alkanes. Alkanes. Okay, alkanes means the compounds which have single bond. The compounds which have single bond are generally called as alkanes. Coming to the second compound, that is alkenes. Alkenes mean the compound which have double bond in them. ऐसे compounds जिनमें double bond होता है, ऐसे hydrocarbons जिनमें double covalent bond होता है, they are generally called as alkenes. Okay, and the third category is alkynes. So the compounds, the hydrocarbons which have triple bond in them are called as alkynes. तो क्लासिफिकेशन जनरली थ्री टाइप्स का होता है और बेसिस क्या है? ऑन द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. जनरली हम सबको पता है कोवेलेंट बॉन्ड आर ऑफ थ्री टाइप्स: सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. सो इफ देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज एल्केन्स. इफ देयर इज डबल बॉन्ड, दैट इज एल्कीन्स, एंड इफ इट्स ट्रिपल बॉन्ड, दोस आर एल्काइन्स. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स के बारे में ही पढ़ना है कंप्लीटली. नॉमेनक्लेचर, isomerism, preparation, properties, that's it. These four things we need to study. हर एक का nomenclature, हर एक का isomerism, हर एक का preparation बनता कैसे और properties क्या है, इन चारों चीज के बारे में पढ़ना है इन डिटेल. तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया. ओके, सो अब हम सबसे पहले इन डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे एल्केन्स को. ओके, यहां तक नोट कर लिए, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे एल्केन्स. प्लीज नोट. एल्केन्स. लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. एल्केन्स का मतलब क्या है? एल्केन्स अगर हम इस वर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो एल्क, इट मींस एल्क एंड एन. इट हैज टू स्मॉल फ्रेजेस. द फर्स्ट फ्रेज इज एल्क, the second phrase is ane. Okay, alk means a hydrocarbon, right, and ane means single bonded. Okay, so the name itself, it's suggesting that ane means a single bonded, alkene means a single bonded hydrocarbon. Okay, now let us know the general formula of it. अबाउट दिस आप लोग क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़ाई कर चुके. ओके, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एल्केन इज CnH2n+2. ओके,
जनरल फॉर्मूला ऑफ एनी काइंड ऑफ एल्केन. सो जस्ट पुट n इज इक्वल टू 1. तो जब आप n इक्वल टू 1 रखते हो तो इट बिकम्स CH4. दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड एंड इट्स नेम विल बी मीथेन. ओके, one carbon with and single bond N. What will be its structure? Structure कैसा होगा मीथेन का? CH H H and H. Okay, so there will be 4 CH bonds, right? Let's put N is equal to 2. So when N is equal to 2, it becomes C2H6 and that name is ethane. Okay, तो C2H6 है, इसका स्ट्रक्चर जनरली ऐसा होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. ये होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है और हर एक कार्बन 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड. ओके, सो CH3 CH3 that is C2H6. Now let's take N is equal to 3. So the compound will be C3H8 and that's propane. Okay, so that will be CH3 CH2 CH3. Likewise. ओके, क्यों बीच में CH2 क्यों आएगा? बिकॉज कार्बन इज कनेक्टेड टू 2 अदर कार्बन्स, सो इट्स 2 valencies already filled. Remaining 2 valencies filled are by hydrogen. ओके, ऐसे ही आप अगर देखते रहोगे तो n is equal to 4 5 में आगे बढ़ते रहोगे. Now the common difference between any two consecutive compounds, okay, these compounds differ by CH2 units. ये जितने भी कंपाउंड है ये CH2 यूनिट से डिफर करते हैं, मतलब दे डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स. ओके, एंड दे आर जनरली कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ होमोलोगस सीरीज. ओके, इनके सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को कहा जाता है होमोलोगस सीरीज. आप लोग क्लास 10th में इस चीज को पढ़े हो. ओके, सो होमोलोगस सीरीज मतलब they all differ by 1 carbon and 2 hydrogen atoms. They all differ by CH2 units. Okay, n is equal to 1 2 3 जैसे जैसे आप पुट करोगे आपको टाइप्स ऑफ एल्केन्स मिल जाएंगे. राइट, यहां तक नोट कर लीजिए. ओके, सो दिस वाज होमोलोगस सीरीज. अब मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है किसी भी पर्टिकुलर कोई भी एल्केन का. ओके, व्हाट इज एग्जैक्टली अ स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन? वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कार्बन और कार्बन के बीच में यहां पे सिंगल बॉन्ड होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं C3H8 का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसे C3H8 का स्ट्रक्चर बनेगा देखिए. ओके, whenever there will be compound given like this, so first of all you need to understand that these 3 compounds have single bond in between them. ये तीनों की तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ये आपको समझना है. तो इसलिए because it's an alkane, right? So now carbon will have one and will have another single bond between these 3 carbons. इस तरीके से आप रॉ स्ट्रक्चर बना लेंगे. सबसे पहले 3 कार्बन का सिंगल बॉन्ड बन गया. अब ये देखिए कि हर कार्बन की वैलेंसी आपकी 4 होनी चाहिए. ओके, सो इट्स वैलेंसी इज 4. एक बॉन्ड इसका बिजी है, रिमेनिंग 3 बॉन्ड्स पे हाइड्रोजन से फिल कर दीजिए. सो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन. ये पहले कार्बन का स्ट्रक्चर बन गया. सिमिलरली सेकंड का हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, बाकी 2 बॉन्ड जिसके कार्बन के साथ ऑलरेडी बॉन्डेड है. Coming to this carbon, 1 bond is bonded, another 3 bonds of hydrogen will be drawn. तो इस तरीके से आप किसी भी एल्केन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे. राइट, so this is the structure of any particular alkane. The speciality of this is if at all I am calculating the hybridization, okay, hybridization is always sp3. Why sp3? Because single bonded compound will always have sp3 hybridized carbon. Okay, कार्बन का अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है. डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन. जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ता है वैसे वैसे p कैरेक्टर कम हो जाता है. Okay, so in single bond you have sp3 hybridization, right?
शेप क्या हो जाएगा अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो शेप इज टेट्राहेड्रल, ओके, टेट्राहेड्रल शेप होगा, ओके। एंड कमिंग टू bond angle will be 109 degree 28 minutes, okay. So this was the structure of alkane, okay. अब आता है कि alkane से संबंधित nomenclature हमको पढ़ना है, ओके। nomenclature means the naming of carbon atoms. तो कैसे पता लगेगा कि मुझे एक कार्बन का नाम क्या है? So we have already discussed, इसमें डिस्कस किया था हमने इन चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने आपको सिखाया है कि हाउ टू नेम द एलिमेंट्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, ओके। मैं एक एक कंपाउंड लिखता हूं, उसका नेमिंग आपको बताता हूं, ओके। सो द फर्स्ट कंपाउंड इज CH3 CH then CH3 then CH3, ओके। ये फर्स्ट कंपाउंड है। अब देखिए इस कंपाउंड में सबसे पहला काम क्या है, मुझे मेन चेन को सिलेक्ट करना है। सो दिस विल बी माय मेन चेन, ओके, दिस विल बी माय मेन चेन। मेन चेन विल कंसिस्ट ऑफ 3 नंबर ऑफ कार्बन्स। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग, तो 1 2 3 नंबरिंग कर लिया, देयर आर 3 कार्बन एटम्स, ओके। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अब हमने जो नंबरिंग किया है, कौन से नंबर पे हमारा ब्रांच है बताओ? सेकंड कार्बन, राइट, सेकंड कार्बन पे हमारा ब्रांच है। सो सेकंड कार्बन विल हैव ब्रांच, और उस ब्रांच में एक ही कार्बन है। तो मैंने आपको बताया व्हेनेवर देयर इज अ ब्रांच, जो ब्रांच का नेम है उसमें सबसे पहले पोजीशन आएगा 2, देन एक कार्बन है, सो दैट विल बी मिथ, ओके। एंड इफ देयर इज अ ब्रांच, द सफिक्स इज YL होता है, सो इट विल बिकम 2 मिथाइल। तो ये 2 मिथाइल है इसका नाम। उसके बाद अब आपको स्ट्रेट चेन में देखना है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर देयर? 3 कार्बन्स, ओके। सो प्रो एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन्स प्रोपेन, सो इट्स IUPAC नेम इज 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। उसी की तरह हमारे पास एक कॉमन नेम भी होता है एलिमेंट्स का, ओके, जिसको हम बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते, बट हमें पता होना चाहिए कॉमन नेम क्या है। जैसे कि बेकिंग सोडा है, हम बेकिंग सोडा डेली लाइफ में बोलते हैं, बट दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज जस्ट IUPAC एंड बेकिंग सोडा इज योर कॉमन नेम। इस तरीके से कॉमन नेम्स होते हैं। सो कॉमन नेम में क्या होगा, आप ये देखोगे कि एक कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा एक ब्रांच है, और इसके इधर और इधर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। So if there are same number of carbon atoms around a carbon atom, that compound is called as iso compound. उनको हम बोलते हैं आइसो कंपाउंड। जब एक ही कार्बन के इधर और उधर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं तो उसको आइसो कंपाउंड बोलते हैं। और कॉमन नेम में आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनना होता है। So 1 2 3 and 4, so its name will be isobutane, isobutane। क्लियर है? नोट करो। Now the next compound name, okay, next compound is CH3 CH CH2 CH3, और यहां पे एक मिथाइल का ब्रांच। अब यहां पे आपका एक कार्बन के इधर पे एक कार्बन है और 2 कार्बन है, तो एक आइसो नहीं होगा, ओके। नाउ सबसे पहले IUPAC जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लेट्स select the main chain, so this is the main chain, okay। अब जब नंबरिंग करेंगे तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो ब्रांच सेकंड आएगा, उधर से नंबरिंग करेंगे तो ब्रांच थर्ड पोजीशन पे आएगा। हमको लोएस्ट चुनना है, so 1 2 3 and 4। तो सेकंड पोजीशन पे we have 1 carbon as branch, so its name is 2 methyl 1 2 3 4 carbons, 4 carbons means but and single bond means ane, so 2 methyl butane will be the IUPAC name, okay, 2 methyl butane, okay।
इस पर्टिकुलर कंपाउंड में हमारा जो मेन चेन होगा, मेन चेन का सिलेक्शन है ये। ओके, दिस विल बी आवर मेन चेन, राइट। सब नंबरिंग कैसे करेंगे अपन? दिस इज नंबर 1, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन। नाउ सेकंड कार्बन हैज 2 ब्रांचेस, तो इस केस में सेकंड ब्रांच में एक सेकंड में एक मिथाइल है और इधर पे भी एक मिथाइल है, तो इसमें कैसे लिखेंगे अपन? 2,2। सबसे पहले दोनों के पोजीशंस लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे 2 मिथाइल लिखते हैं ना, वैसे इस बार 2,2, क्योंकि 2 मिथाइल है, इधर पे भी मिथाइल है, इधर पे भी मिथाइल है, तो 2 बार मिथाइल नहीं लिखेंगे, we will not write 2 times मिथाइल। 2,2 डैश डाइमिथाइल, we will write डाइमिथाइल। उसके बाद स्ट्रेट चेन में आएंगे, we have 3 carbons, okay, straight chain, so that will be propane। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये हो जाएगा IUPAC नेम। और अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो इसका कॉमन नेम में ये नियो कंपाउंड होता है, जब कार्बन के चारों ओर कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, सो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज नियो कंपाउंड। नियो, नाउ टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 5, so it will be neopentane। neopentane नोट कर लीजिए।